नमो श्री गुरवे परम ब्रह्मणे ओम नमो नारायणाय ओम ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुक्तं शरण्यं भूर्त्यार्त्यहं प्रणतपाळ भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं ସେହି ସର୍ବନିୟନ୍ତା ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟୁ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରଣ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଇହ କାଳରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଅନ୍ତକାଳରେ ସଦ୍ଗତି ଲାଭ ହେବ ଏହି କାମନା କରି ଆଜିର ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ସକାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଶୁଭ ପ୍ରାତଃ କାଳର ଆଗମନରେ ଭବ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବଂ ସର୍ବଂ ଇତି ସେହି ପରମାତ୍ମ ପରମବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟେ ଘଟେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏଇଠାରେ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନ ଭବନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହି କାମନା କରି ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ଗୁଣ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛେ, କେତେବେଳେ ସତ୍ଵ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ରଜଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବା କେତେବେଳେ ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ସେହି ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସେହି ସତ୍ଵ ଏବଂ ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ତମ ଏବଂ ରଜଗୁଣ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟ ତାମସିକ ଏବଂ ରାଜସିକ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ସତ୍ଵଗୁଣ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସତ୍ଵଗୁଣର ଯେଉଁ ସାତ୍ଵିକ ସ୍ୱଭାବ ଆମ ଉପରେ ସେହି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଫଳରେ ଆମେମାନେ ରଜଗୁଣ ଏବଂ ତମ ଗୁଣର କିଭଳି ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉ ଏବଂ ଆମର ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଚାର ହୁଏ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆସେ ବିବେକବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରି କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ତାହା ସଦାସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ହୁଏ ଏବଂ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ହୁଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ରଜ ଆଉ ତମ ଗୁଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଦୈବ ସମ୍ପଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅସୁର ସମ୍ପଦ ବା ଆସୁରିକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଉ, ତେବେ ସେହି ଗୁଣରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଶତ ଶତ ଗୁଣରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ସ୍ୱାର୍ଥପର ବା
ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅନେକ ଭୁଲ ରହୁଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଅନେକ ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ରହୁଥିବାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିବାରୁ କେବଳ ଆମ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଦେଶ ରାଗ ଘୃଣା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମ ଭିତରେ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ସ୍ୱଭାବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜର କ୍ଷତି କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କରିଥାଉ। ଏ କଥା ପୁଙ୍ଖାପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ସେହି ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଆମ୍ଭେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନେ ଋଷି ମୁନିମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧିବିଧାନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଆମେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କପୋଳକଳ୍ପିତ ଭାବରେ ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ଭାବରେ ଯାହା କିଛି କରୁ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନେ କରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଧନବାନ ମୁଁ ବଳବାନ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଅଭିମାନ ଆଦି ଅନେକ ଆମେ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଆସୁରିକ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ମନେ କରୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହୁଁ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଆସେ ଯେ କାମନା ପ୍ରସୂତ ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନାତ୍ମକ କାମ ଭାବରୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ ବା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବିଶେଷ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନାସ୍ତିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବା ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନେ କରି ମୁଁ ଅହଂ ମହାତ୍ମା ଅହଂ ଧନବାନ ମତୁଲ୍ୟ କୋସ୍ତି ଭୂତଳେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନବାନ ମୁଁ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ମୁଁ ମହାତ୍ମା ମୁଁ ହେଉଛି ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ପାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ମୋତେ ପୂଜା କରିବେ ମୁଁ ପୂଜା ପାଇବି ଏବଂ ମୁଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି କାହାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି ଆଦି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନାନାଦି ମନ ଭିତରେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ଉଠେ। ତା ବଳରେ ଆମେ ନିଜେ ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଏବଂ ପରିବେଶଟିକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ଏକ କ୍ରୂର ମାନବ ଭାବରେ ବା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଟିଳ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭାବରେ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଉ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଉ। ଆତ୍ମସମ୍ଭାବିତା ସ୍ତବ୍ଧା ଧନମାନ ମଦାନ୍ୱିତା ଯଜନ୍ତେ ନାମ ଯଜ୍ଞସ୍ତେ ଦମ୍ଭେନା ବିଧିପୂର୍ବକ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଥିବା ସେହି ଗର୍ବୀ ପୁରୁଷମାନେ ଧନ ଓ ମାନର ମଦରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କେବଳ ନାମମାତ୍ର ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଆଡ଼ମ୍ବର ପୂର୍ବକ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ରହିତ ଯଜନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଥିବା ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ମନେ କରୁଥିବା ସେହି ଦାମ୍ଭିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ସେହି ଗର୍ବୀ ପୁରୁଷମାନେ ଧନମାନର ମଦରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଲବ୍ଧ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ୱ ଅପହରଣ କରି ଆଣିଥିବା ଲବ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ଧନକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଳ ଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ଭିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକବଳ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ବଳକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଅପହରଣ କରନ୍ତି। ସେହି ଧନ ଦ୍ୱାରା ବଳବାନ ହୋଇ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଅଭିମାନ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ମଦମତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତା ଅବିଧି ହୋଇଥାଏ। ବିଧିହୀନଂ ଅସୁଷ୍ଠାନଂ ମନ୍ତ୍ରହୀନଂ ଅଦକ୍ଷିଣଂ ସେଠି ଦକ୍ଷିଣା ନଥାଏ
बलपूर्वक से बल प्रयोग कर अन्य मानक बस कर यज्ञ करुँच क्या कथा से शुणती ना क्या कथार गुरुत्व दिखती ना पंडित जन मान द्वारा याज्ञिक ब्राह्मण मान यज्ञर जो विधि विधान को से उल्लंघन करती से यज्ञर कौन फल प्राप्त हुए ना आदि फल प्राप्त हुए ताहा विपरीत फल प्राप्त हुए कारण समस्त कर्मर जेहेतु गोटे फल अच्छी आमे जेहेतु विधान बा विधि अनुसार यज्ञ कर एवं आमे जजमान एवं ब्राह्मण जो मैंने उपस्थित था यज्ञ करने याजक मान आमे से सठिक भाव में दक्षिणा आदि मान मर्यादा आदि देउ नथिबारु सेमानक भीतर असंतोष थाए एवं अमर्यादा करुथिबारु यज्ञ को एवं विधिहीन भाव में करिथिबारु तार कुपरिणति एवं कुफल को आमे माने प्राप्त हेउथाउ। अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं च संश्रिता ममात्मा परदेहेषु प्रदिशन्ति अभ्यसूयकाः। अहंकार बल दर्प गर्व काम क्रोध अज्ञान मोह द्वारा आच्छन्न होइथिबा सेई निंदित व्यक्ति माने अन्य मानक निंदा करती निजको श्रेष्ठ मन करती एवं से पुरुष माने निजर एवं अन्य मानकर शरीर रे अधिष्ठित थिबा अंतर्जामी रूपी मोह सहित ही देश करती। प्रकृत में जितेबाला से आत्मज्ञान हो न थाए से भगवानमुखी हो न था से सत्संगी हो न था अन्य मानक घृणा करती अन्य मानक भ्रुक्षेप करती अन्य मानक गौण मन करती निजको श्रेष्ठ मन करती से ज्ञानी गुणी पंडित विद्वान व्यक्ति सहित संगलाभ कर नथिबारु आत्मज्ञान प्राप्त हो नथिबारु एवं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान को विषय कौन ज्ञान तांकर नथिबारु एवं से माने कौन शास्त्र विधि मानु नथिबारु से माने भावती जे ये मनुष्य जो सृष्टि होइछि बा जो प्राणी माने जीव माने सृष्टि होइछन्ति एमाने समते काम प्रसूत बा नारी पुरुषर मिलनात्मक काम सृष्टि होइछन्ति तेणु भगवान को विश्वास करूनथिबारु से प्रति जो अन्याय करती अहंकार बल गर्व काम क्रोध परायण होई अन्य मानक निंदा करती अन्य मानक दुख दियंती अपमानित करती कष्ट दियंती प्रकृत में से कष्ट देउ नथांती तांको मध्यरे जो आत्मसत्ता बा आत्मतत्व अच्छी जहाँ को कह जाइछि ईश्वर सर्वभूतानां ईश्वर जेहेतु समस्त भितर अच्छी एवं से आत्मा रूप में जेहेतु समस्त अच्छी एवं जीव रूप में जेहेतु से समस्त अच्छी ये कथा को से स्वीकार करुनथिबारु से दाम्भिक माने परोक्ष भाव में जहाँ अन्य मानक प्रति अन्याय अत्याचार करती ताहा प्रकृत भगवान को प्रति करुथांती भगवान को प्रति अन्याय अत्याचार करुथिबारु से भगवान को द्वारा दंडित हुंती एवं से माने जो अनेक जन्मर पुण्य फल जो सुंदर मनुष्य जन्मटी प्राप्त होइछन्ति जो मनुष्य शरीर रे बुद्धि विवेक ज्ञानर प्रकाश होइछि से ताको धूलिसात कर दियंती तांकर बुद्धि एवं ज्ञान एवं तांकर जो विवेक पथ से भ्रष्ट हो जाते पथभ्रष्ट व्यक्ति भाव में अहंकारी एवं दंभ दर्प क्रोध आदि अनेक गुड़े दुर्गुण जहाँ को कह जाए आसुरिक गुण द्वारा से आच्छन्न होइथिबारु से प्रकृत में अंतर्जामी रूप से जो अंतर रे भगवान अच्छन्ति तांको उपेक्षित करती एवं तांको घृणा करुथांती तेणु जो माने भगवान को प्रति यही भाव में घृणाभाव आणती जो व्यक्ति माने से माने भगवान को द्वारा दंडित हुंती कारण जिते भगवान देखती जे अनेक जन्मर पुण्य फल बहुना जन्मना अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वंगीति समहात्मा सुदुर्लभ जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को जो माने प्राप्त होती बहु बहु अनंत कोटि जन्म 84 लाख जीवजनी अतिक्रम करी स्थावर जंगम कीट पतंग जलचर स्थलचर पशु पक्षी आदि अनेक जोनि जन्मलाभ कलापर जिते मनुष्य जन्म लाभ करती सेठारे बुद्धि विवेक ज्ञानर पुरुषकार भाव में भगवान तांको संयुक्त करिथांती सेमाने से बुद्धि विवेक ज्ञान को विपरीत दिगरे व्यवहार करती अर्थात सेमाने जेहेतु दंभ दर्प अभिमान एवं क्रोध द्वारा निजको आच्छन्न करिथांती काम क्रोध लोभ द्वारा से आच्छन्न होइथांती एवं से निजको ईश्वर बा निजको सबुठारु श्रेष्ठ मन करती से आत्मज्ञान विमूढ़ आत्मा बोली कह से मूढ़ आत्मा तांको भीतर आत्मज्ञान नाही भगवान ज्ञान नाही तेणु से संसार रे अन्य मानक दुख दियंती कारण जेतेबेले जड़े बुझीपर जे मो मध्य जो भगवान अच्छा मो भितर जो आत्मचेतन सत्ता अच्छी
मते प्रत्येक परिवेश रे काय मन वाक्य दुख बा कष्ट देले शारीरिक भाव में हो बा मानसिक स्तर में हो बौद्धिक स्तर में हो बा वाक्य कहीकि हो जदि कहीं किसी करुच्ची ताला मते जो भाव में कष्ट लगे मोर शरीर को कष्ट लगे मनरे दुख आसे एवं मोर अशेष क्षति हुए एवं से क्षति द्वारा जो भाव में मु दुखरे जर्जरित हुए एवं पीड़ित हुए मुझे जदि से भाव में क्या कायरे मनरे वाक्य शारीरिक द्वारा क्लेश दिए मानसिक द्वारा जंत्रणा दिए बा कष्ट दिए ताले सेठी कौन हम ना काय मन द्वारा कष्ट देउथिबारु वाक्य द्वारा से कटुवचन कहूथिबारु से भाव में कष्ट लगुथिबो जड़े आत्मज्ञानी बा भगवान को जानी व्यक्ति जिते से बुझीपारे जे भगवान कौन से निर्दिष्ट स्थान में नहांती भगवान सर्वत्र व्याप्त व्यक्ति विशेष भाव में से बेष्टि भाव में जेभली भाव में अंतरस्थ ठीक से भली भाव में समष्टि भाव में सबु प्राणी ठारे सकल घटरे काष्ट पाषाण तरु तृण सकल घटे नारायण अर्थात सबु स्थान से विद्यमान करिसंती एही भली भावना से व्यक्ति मान भितर आसुथिबारु से माने होचंती दैव संपदर अधिकारी बा दैव गुणर अधिकारी हेथिबारु देवसुल्लभ गुणर अधिकारी हेथिबारु सेमानक भितरे से ज्ञान थिबारु से माने काहाकू केबे खराब दृष्टि देखि पारंती नाही कारण से माने भल भाबी बुझी जाइचंती जे आमर रूप बा शरीर भिन्न प्रकार प्रतीयमान हेउथिले मध्य बा विभिन्न प्रकार दृश्यमान हेउथिले मध्य कीट रूपरे स्थावर जंगम रूपरे काष्ट पाषाण तरु तृण रूपरे पशु पक्षी कीट पतंग रूपरे एवं नानादि भाव नाना जाति धर्म वर्ण भाव विभिन्न प्रकार भेद परिदृश्यमान हेउथिले मध्य प्रकृत में से जो आत्मचैतन्य बा ब्रह्म बा भगवान समस्तक मध्य समान भाव में विद्यमान करुछंती जेभली भाव में अनेक गुड़िए कंठी को बा अनेक गुड़िए मणि को बा मुक्ता को गोटे सूत्र द्वारा ग्रथित करा जाय थाए से मणिर बा कंठीर संख्या 108 हो पारे 1000 हो पारे बा 2000 कि 5000 हो पारे किंतु जो सूत्र द्वारा ता ग्रथित होता बा गुंथा होता है ताहा जेभली मणि बा कंठी गुड़िक भिन्न भिन्न आकृतिर बा भिन्न भिन्न होइतिले मध्य किंतु सूत्र होची एक ठीक से भली भाव में अनंत कोटि ब्रह्मांड मध्य आमे अनेक अनेक प्राणी समूह सृष्टि होइतिले मध्य आम समस्त भितर अंतर्यामी रूप से बा आत्मचैतन्य रूप से एक ही भगवान ही विद्यमान करुछंती यही बुद्धि बा यही विवेक आमठारे उदय होता है तेणु आम मान को कह जाए आम समस्त हो देव सुलभ प्रतिम अर्थात आम मान भितर से जो दैव गुण गुड़िक थाए से आम क्या घृणा करूना आम पाप को घृणा करूँ किंतु पापी की घृणा करूना कारण तार रज बा तम गुण द्वारा आच्छन्न होई से जदिओ आसुरी संपदर असुर गुणर अधिकारी नानादि भूल कर बसुची किंतु तार अंतर मध्य से परम ब्रह्म परमात्मा विराजमान करिसंती जी मो मध्य अछंती किंतु से भूल बाटे कहीं जाउची ना से तार खाद्यपेय तार जो परिवेश तार संघलाभ रजतम गुण प्रभाव थिबारु से प्रभाव से प्रभावित होई तार खाद्यपेय चालीचलन एवं तार समस्त परिवेश तम गुण बा रजगुण द्वारा आच्छन्न होइथिबारु से मध्य से आच्छन्न हुए से भली भाव कार्य करुଥାଏ एवं तार गुण स्वभाव आदि से भली भाव होता है अत्यंत क्रूर होता है तेणु से अहंकारी व्यक्ति सी बुझी पारे नहीं जे मो भितर जो परमात्मा परम ब्रह्म भगवान अछंती ताहा समस्त ठारे अछंती तेणु से ये कथा को बुझी पारु नथिबारु अज्ञानता थिबारु से अन्य मानक ऊपर अत्याचार करे अन्याय करे अन्य को दंड दिए अन्य को दुख दिए से ही परिप्रेक्षी ठीक से भली भाव में जो माने दैवी गुणर अधिकारी अछंती बा देवसुल्लभ व्यक्तित्व माने से माने सत्व गुणर अधिकारी होइथांती एवं केतेक बोधे गुणातीत होइथांती अर्थात रज तम एवं सत्व गुणर मध्य अतीत होई से गुणातीत भाव में अत्यंत माने भगवान को प्राप्त भगवान को सम हो जाइथांती एवं से आत्मारे स्थित थांती अर्थात स्वरूप स्थित थांती से तांकर शरीर धर्म न थाए शरीर धर्म नष्ट हो जाए शरीर इंद्रिय माने कर्तव्य कर्म पाई तांकर कर्म करुथिले मध्य से निजको आत्मा
भाव में प्रतिष्ठित करिथांती गुणातीत व्यक्ति माने जो माने सत्वगुण व्यक्ति से भितर बुद्धि विवेक ज्ञानर पराकाष्ठा सत्वगुण युक्त होइथिबारु सेमाने बा सेमानकर बुद्धि गुड़िक मार्जित होता है से अहंकार बल दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य ये सब गुण जहाँ असुर संपदर गुण गुड़िक से अनायास त्याग करी से समस्त प्रति स्नेहशील हमें समस्त प्रति श्रद्धार भाजन होता समस्त श्रद्धार भाजन से हमें से समस्त स्नेह करुँच श्रद्धा करुँच सम्मान देउथांती तार अर्थ है जे सी बाह्य भाव में प्रतिष्ठित होइथिबा जाति धर्म वर्ण ये भेद को न देखी एवं धनमान जश कृतिर किए अधिकारी से विचार न करी सर्वशेष किए पापी किए धनी बा किए दरिद्र किए रोगी बा किए भोगी समस्त विचार को प्रत्याख्यान करी यह हूँ शरीर धर्म यार निर्विशेष समस्त भितर से परम ब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी रूप में रोथिबारु से कीट पतंग स्थावर जंगम आदि समस्त विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सौपाके च पंडिता समदर्शिना से प्रकृत पंडित तांकर समान दर्शन आसी था से समान भाव में समस्त भगवान को अनुभव करिथिबारु से कहारी की केबेले दुख कष्ट दियंती नाही से समस्त दुख को निज ठारे अनुभव करती से भावती जे समस्ते जदि दुखरे विगलित होउछंती मु समस्त भीतर मु आत्मा मु समस्त भीतर तांकर दुख मोर दुख तेणु से समस्त दुख निवारण करने उभा होता सतत चेष्टा कर दुख दुर्दशा को निवारण करने अकस्मात जदि केवे विश्व में देखा दिए दैव दुर्विपाक बा दुर्घटना दुख से हठात आसती आगे आसती तरफ निस्वार्थपर भाव में अन्य सेवा करने जत्न नेवाई से माने स्वार्थपर भाव में जो भाव में आसुरी संपदर व्यक्ति माने जो आसुरिक प्रवृत्तिर व्यक्ति माने जो भाव में अर्थ संचय करि कहारी दुख बेले करुणार चित्त विगलित हुए ना से कहारी भी विगलित हुए ना क्या दुखरे दुखी हुए ना जदि पड़िशारे कहीं उपवास रही अनेक दिन है जदिओ तार पिंधापी कौन वस्त्र ना छिंडा वस्त्रटी से पिंधुची शीत दिन आसी कम्बलटे ना माने शीतरु रक्षा करने एवं से वृद्ध कि रुग्ण कि असहाय व्यक्ति तांको प्रति तार कौन करुणा न थाए कौन दया भाव न थाए से क्रूरता भाव में जीवन यापन करुए किंतु जे बुझी थाए जे भगवान समस्त अच्छा से ईश्वर पूजा करने देवालय को जीवा अपेक्षा से व्यक्ति विशेष मान पूजा करें प्रकृत परोक्ष भाव में ये आसुरी संपदर व्यक्ति माने जेभली भाव में परोक्ष भाव में अन्यमान भितर भगवान को उपलब्धि न करी स्वार्थपर भाव में अन्यमान को दंड देउथांती घृणा करुथांती ठीक से भाव दैव संपदर व्यक्ति माने अन्यमान को पूजा करती सम्मान दियंती एवं समस्त सुखरे सुखी एवं दुखरे दुखी होउथांती तेबे आमे आजिर यही अध्याय समस्त भितर किभली भाव में से दैव गुण गुड़िक फुटी उठू समस्ते भल मनीष हुंतु एवं विश्वर कल्याण करंतु यही चिंता करी लोका समस्ता सुखिन भवन्तु ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज आम ये अध्याय को समाप्त करुचे आगामी अध्याय ये आरंभ करा आपण माने समस्ते उपस्थित रहिबे। हरि ओम तत्सत।